First of all, I must thank the Viva Group, Viva Boards, particularly Mr. Naveen Joshi, who has come along with me, and of course Mr. Vinod Vashisht, who could not make the trip because of ill health, but he talked to me about more than 2-3 times, for organizing this important workshop. Another 3 hours will be very, very crucial, and I'll be seeing how patient you are. I'll be testing you also. For this important session on national education policy and national curriculum framework. And this they are doing almost free of cost. Maybe the part of corporate social responsibility, CSR. But I think I must laud them for organizing this. We have already organized 1 or 2, 3 earlier also, through online and through offline also. So I'm appreciating them that they have called me here, chasing me to reach to. I was a little bit hesitant initially, but then they succeeded, and I'm happy that you're giving me a chance to interact with you on some of the things which you will not be finding anywhere. So I will be just requesting you the next 3 hours. We will be making it very interactive session. We will be trying to make it short as well as sweet also. But then many things, the presentation that I will be making it, that will be given to you. No problem of just photographing it or just note it down. But the things, many things I will say, which you may like to note it down, so that when you go through this presentation later on, then you can correlate with your notes and that things. Well, let me start with a question so that we can get the answer. Why are you here? Why are you here? Not because you are all talented individuals, that I know. Not because that you are good enough, but because you can be made even better. I do believe in the mantra that we must approach life with the mind of a beginner and not as an expert. My customer is expert but I'm still learning. Many things we have was not able. I learned 9 years in Central Board of Secondary Education. So it's very important that we should approach our life with the mind of a beginner and not as an expert, no matter what is your age, your experience, or your status. Gunmin Mitra, one of the finest principals in India right now, she came to meet me and apologized that I could not make it because she had already had in some meeting, or an important meeting. So we need to approach, and at every point you must be a learning individual. Well, as you know that we are passing through some of the most critical, exciting, and accelerating times in human history. Critical in the sense that there are uncertainties all around. Yes. There is accelerated pace of development in the field of science and technology. There is radical transformations in the field of work and employment. And these are all impacting the minds of our children. And exciting in the sense that new national education policy and the radical transformation in the field of work and employment, and these are all impacting the minds of our children. Exciting in the sense that National Education Policy 2020 is in place. There is a National Curriculum Framework 2023, and these have recommended transformative changes in all dimensions of
education. But unfortunately, in most of the cases, our education system still equips our children with the kind of skills and competencies that will have no or little relevance in tomorrow's world. हम जो उनको दे रहे हैं, it will have no relevance. I'm talking to you. हम सब समझते हैं we are doing the great works, but no, it's only we are doing the repetitive work. Every academic session finishes one academic session and reaches to the end. Same thing is being repeated. That what new career options will emerge in future? The world we live in is changing so dramatically and fundamentally that our students graduating from school in 2030 or 2032 will make careers in fields that we are actually not aware of it. ये हालत है. We are not aware of it. What career option they will take in 2030 or 2030, those students who are in now class 2, class 3, class 4. So that is the changes happening all around. In such cases, in such situation, and in this new world order, our heads need to prepare our students accordingly and appropriately so that they can grab most of the opportunities which the globalization is ushering for them. We have to prepare this. They need to grab. Otherwise, the smaller countries, Vietnam, Singapore, are coming in a very strong manner, and they will grab all these opportunities. Because our students now, one thing I must tell you, our students will not remain themselves as a regional player or local player. Gone are our days. जब आप अपने local area में रह के नौकरी करके जिंदगी बिता देते थे. All of them have to appear at the national level, and many of them will also appear as in a global competitive situations. That is the thing happening now. We as head needs to prepare the students accordingly and appropriately. So one size fits all system will not work. ये जो one size fits all system है, जो चल रहा हमारे स्कूल में, that is not going to work now. And similarly, the 3R mindsets, repetitive, restrictive, and regulative. यही तो हो रहा है आजकल. We are thinking that we are doing the great things, great job. Nothing. We are doing the repetitive job because we do not want to learn. We do not want to change ourselves. It's all restrictive, repetitive, and regulative things are going on now. This will not work now. And you know that today, both teachers and the students are having dilemmas. They are having their own problems. What is the problem with the students' dilemma? It is a one-size-fits-all education system. 60 बच्चे, 50 बच्चे, 55 बच्चे हमारे क्लास में हैं. The same curriculum for all type of students, same content, same teaching style. पढ़ा दिया सब एक साथ. Even the homework is not differentiated. Same homework for all types of students. Without knowing कि किसकी क्या capabilities है. We are doing that. वो चल रहा है साल भर. Same assessment system also. We are not assessing the students as per their abilities, as per their learning style. We are assessing them as per our comfort. We are assessing them. And same teaching space. So students are having really problems. And in this situation, the two types of students are the most sufferers now. हम तो स्टूडेंट से बात करते हैं, हमसे कहते हैं कि सब आप लोगों ने क्या किया है. हम लोग को जो है 14 वर्षों तक जो है जेल में डाल दिया, तो 12/12 और 20/25 इन क्लासरूम, और सबको एक ही धरने का जो है एग्जाम दे दिया. हमारी तो नीड ज़्यादा थी, कुछ और ही थी. The meritorious students and the weaker students are the most sufferers. The system is good for the average students. So we are just addressing the mediocrity and not meritocracy. We prefer the mediocrity. वही हम कर रहे हैं. Meritocracy का कहीं कोई जुगाड़ ही नहीं. जो बच्चा राइज कर रहा है, शाइन कर रहा है because of their own abilities, because of their own things.
So this will not work. The teachers are also having the dilemma. So one size fits all system, I say that on every system can be personalized. Why not in education? As per the requirement of the individual. Why it cannot happen? I know the problems. You will say that these are the problems. But we do not need any more excuses. Today we want solution. How can it be happen? The teacher's dilemma, again, the teachers often ask, when I interact with them, can I just focus on teaching? All the time we are busy with the para-academic. All the time we are busy with the non-academic activities. You know the researchers have proved that 35% of the teacher's time are just being spent on preparing, correcting, summarizing classwork, homework, results. 35. I'm not saying that these are not important, but what I am saying that can we squeeze some of this time so the teacher can discover the things in the classroom and not just covering the courses, not just covering the content. That is what is happening. They can think of innovative pedagogies, can think of certain experiential learning, can share. This is not happening. So teachers are really having the problems. So 35, we need to now change the things. And unless and until the things are changed, because now NEP is in place, NEP 2020 is in place, and NCF 2023 are there. The challenges today are more demanding than ever before. Yes, challenges are more demanding now. So we need new mindsets, new processes, new strategies. Yes, in fact, an entire new paradigm of instructional leadership on the part of the heads to make organizational recovery happening. Today, organizational recovery is needed. We need to have an instructional leadership for organizational effectiveness. आज इसकी जरूरत है. We know the things that when the school have good leaders, they become the leading schools. Yes. And this is also true that all outstanding schools have effective principals. Yes. And the vice versa is also true, that an effective principals will definitely develop outstanding schools. Hai. Otherwise, all. You know that there are about 4 lakh secondary and senior secondary institutions in India. And do you know that more than 90% of the schools are still at education 1.0 level? And we are saying that we are doing the great things. More than 90% of the schools. It is only few who have reached to the education 2.0 level. Forget about the education 3.0, education 4.0. And we are talking about industrial 4.0 जो है हमारे दरवाजे के सामने जो है खड़ा है. How to address these challenges posed by the industry 4.0 when we are working at the education 1.0 level? That's the problem actually. So when the NEP and NCF has recommended transformative changes in all dimensions of education, we need now today organizational recovery. And organizational recovery is not a painless process. You know, when a child is born, the mother has to take 9 months of pain and sacrifices. And then the joy comes. Okay. So remember, organizational recovery is not a painless process. And remember also that school leadership is not for weak-minded and neither for weak-hearted. हमें दोनों नहीं चाहिए. Because weak mind, weak heart lead to weak action. 3 तरह के हमको देखने को मिलते हैं स्कूल हेड्स. आप तीनों में से एक भी नहीं होना चाहिए जो आज यहाँ उपस्थित है. एक तो सुखिया टाइप के आदमी, हर चीज़ में सुखिया है, काम करे चाहे ना करे, हैप्पी गो माइंड. अरे ठीक है, डायरेक्शंस आते रहेंगे, चलते रहेंगे, हम अपने रवैया चलाते रहेंगे. ये सुखिया टाइप के पर्सनालिटी से. दूसरा है दुखिया, ऑल द टाइम दुखी, अच्छी बातें करो, पॉजिटिव बातें करो, दुखिया है. ऐसा हमको आप जानते हैं हमारे लाइफ में कितना कष्ट है. तो वन इज सुखिया, वन इज दुखिया, एंड द थर्ड इज द झुकिया. और दैट्स वेरी डेंजरस. ऑल द टाइम जो है झुकिया है.
We don't need any three categories of people now to head the schools. Neither the Sukhiya, neither the Dukhiya, neither the Chukiya. Okay. So a school head now not only needs to take pain, read a lot. अब इंट्रोस्पेक्ट करके देखो, वास्तव में आप पढ़ते हो? मैं मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ. Yes, that type of reading I do not need. Do you read a lot? Do you learn a lot? Do you laugh a lot? Do you run a lot? Usain Bolt की तरह आपकी personality है that you can run a lot. You know Usain Bolt? Yeah. Can you run a lot? Can you travel extra mile to reach to your goal? मैं इसका आंसर नहीं चाह रहा हूं. आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके देखो that you have this type of personality or not. Can you travel extra mile? Can come out from your comfort zones? All of are now put into a set of coordinates. मैंने बना लिया ज्योमेट्री में set of coordinates and putting ourselves in that comfort zone. उससे बाहर नहीं आना चाहेंगे. अरे आज बहुत ठंडा है, कौन जाएगा उस होटल में जो है सुनने के लिए? और हम तो सब चीज जानते ही हैं, क्या वो नई चीज बताएंगे? तो ऐसे आदमियों से आप nothing can be now expect because they are Sukhiya type या Dukhiya type है. Okay. So we need, there is a proverb also, there is a saying also that as you think, so you become. Yes. In order to become great leaders, you have to think big. Yes. One cannot achieve greatness with a small mind or with repetitive thinking. One cannot achieve greatness. You have to think big, beyond yourself, beyond your routine duties. Then only you can become a great leader, then you can achieve something extraordinary. तभी आप कर सकते हैं. So we have to first think big, beyond yourself and beyond your routine duties. एक बड़ा अच्छा आपको हम सदगुरु की जो है हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा था some time back. It's a beautiful statement that to lead people, you must make sure that all of them fall in love with you. For that, you must fall in love with them. Trust them, respect them, caring them. Once you are a leader, you are not the privileged one. गलतफहमी निकाल दीजिए. Once you are a leader, you are not the privileged one. मैं अपने आप को कभी भी privilege नहीं मांगा है. I know the challenges for me. They are. Your followers have the privileged one because they have their choices. उनके बाद आप नहीं है तो ठीक है हम दूसरे का चले जाएंगे. You don't have any choice. Beautiful, beautiful thinking quotation by Sadhguru. So, you need to care them. You need to care that you are, जिसके लिए आप lead कर रहे हो. You do not need to put educating as your first choice. आप educating की बात करो. Educating के साथ educating, caring them. You don't have any other choices. To see that school leadership is not about charisma. You have a charismatic personality, then you can run the show. Sorry. That's the way the school cannot be managed charismatically. Neither you can run the show with your bureaucratic managership. No, ये दोनों चीज अब नहीं चल पाएगा. ये सब चीजें पुरानी हो चुकी है. Times have changed. Yes. हमारे समय से जो है बहुत चीजें परिवर्तन हो चुका है. Times have changed, and along with the NEP and NCF, now are the ground realities. The very concept of school leadership have changed now. आपको इसको मानना पड़ेगा. The very concept of leadership have changed now. पहले जो thinking था, the top things and local acts, ये अब नहीं चल पाएगा. It has now, ये अब obsolete हो चुका है कि हम तो डायरेक्शन देंगे, करने वाला तो हमारा बॉटम लाइन है. नो, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए. You have to change it in favor of cooperative networking approach. बैठ के काम करना पड़ेगा. सीबीएसई मैंने किया है, बैठ के जमीन पर बैठ के काम किया है. जब हमारा पेपर लीक हुआ था
रात भर बैठकर हम भी जमीन पे बैठे हुए थे। कोऑपरेटिव नेटवर्किंग अप्रोच, टुडे वी नीड ए पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वर्टिकल हायरार्कियल अप्रोच टू हॉरिजॉन्टल लेटरल लीडरशिप। ये आवश्यकता है। उनको आ नहीं रहा है, उनको ये पूछ रहा है आपसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या चीज होती है सर, हम तो पहली बात सुन रहे हैं। यू हैव टू टेल देम कि व्हाट एक्चुअली एक्सपीरियंशियल लीडरशिप मीन एंड हाउ दिस कैन बी इंप्लीमेंटेड एज पार्ट ऑफ पेडागोजी इन द क्लासरूम। आप अगर उनको नहीं बताते हैं तो इसका मतलब यह है कि यू कैन नॉट लीड देम, एक्चुअली यू कैन नॉट बिकम ए लीडर। सो नाउ विथ एनईपी एंड द एनसीएफ आर द ग्राउंड रियलिटीज। ये आज यथार्थ है, आज रियलिटी है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। तो व्हाट आर द चेंजेस दैट द स्कूल हेड नीड टू अंडरटेक, नीड टू अडॉप्ट? क्या चेंजेस आपको लाना हो चाहिए? दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन। सो बिफोर आई डेलिब्रेट on these issues microscopically, let us first see what the NEP 2020 is meant for school leaders. क्या what NEP 2020 meant for the school heads? पहले उसको तो देख लें, तभी तो हम वो ले पाएंगे। So if you say that it is a 10-point program, yes, entire NEP 2020 can be summarized for school heads into a 10-point program. 85% of the things जो आपको करना है इसी 10 पॉइंट में ही समाहित है, included है. Only 10-point program, you need to focus on that. Let us see what are those 10-point program first of all, before I jot down what are the actions you need to do that. So it is a new pedagogical structure. आपको जानकारी है. No longer is 12 years of schooling now. It is a 15 years of schooling. इसका क्या परिवर्तन है? ये तो कहा गया कि easily 5 + 3 + 3 + 4. But the most important change that has happened, it is the first 5 years of schooling, जो foundational stage कहा जा रहा है, and the last 4 years of schooling, जो secondary stage कहा जा रहा है. No longer now we will say that it is a secondary school, it is a senior secondary school. 4 years of integrated secondary education. ये fundamental changes हुआ है. पहली बार, because of the new pedagogical 15 years of schooling, now the pre-primary section, which was in an unregulated sector till now, has now become onto a regulated part में आ चुका है. That's a fundamental change. Now the big school will start from class 3 onwards. जो भी नए स्कूल हमसे पूछता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, आज मैंने गुणवीत मिंद्रा को भी ये कहा कि ही इज चेंजिंग द रिनोवेटिंग द स्कूल. मैंने कहा कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए अलग से ब्लॉक कर दीजिए, so that the smaller child remain separated from the bigger child, which will start from class 3 to class 12. So that's a good thing happening. फाउंडेशनल ब्लॉक हमने अलग कर दिया, फाउंडेशन अलग कर दिया, उसका कोऑर्डिनेटर अलग कर दिया, उसके स्टाफ अलग कर दिए, एंड दे विल नॉट मिक्स अप एनीवे इन एनी वे विद द बिगर स्टूडेंट्स एंड देयर स्टाफ एक्चुअली. सो दैट इज अ न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर. और 15 ईयर्स स्कूलिंग का एडवांटेज भी है. जब फॉरेन में जाते हैं हम लोग को ये कहा जाता है बच्चों को, यू हैव ए 12 years of schooling now, you have to do some buffer courses. That will not be now needed because we have undergone the 15 years of schooling. Okay, foundational literacy and numeracy, that is the second point. Yes, अब ये कहा गया कि now the 5 years of schooling जो है, that is now most important stage of learning for our children. Equity की बात इसमें कही जा रही है, because you know when a child in a government school enters into class 1 and a child in a private school enters into class 1, there's a huge learning gap between them, and this gap remains throughout their education career, throughout the school education. इसको तो minimize करना पड़ेगा ना. So that is what happened, that this 5 years of schooling is a must, a foundational stage, जहाँ पर हम numeracy and literacy पर focus करेंगे. We'll focus on that. So that at the end of the foundational stage, what is the competency child में होनी चाहिए? Fluency in literacy, fluency in numeracy. So just focus on this foundational stage, only on numeracy, only on literacy, and only on multilingualism. So the class 3 से और subject की हमें, don't put up so many subjects, so many learning things in this 5 years of schooling. Just focus करिए only on literacy, only on numeracy. जब आप literacy बात करते हैं, on multilingualism की आप बात कर सकते हैं. That is a foundational stage, foundational literacy. Flexibility की बात कही गई है, ये था नहीं. We have one size fits all system since Kothari Commission, since Radhakrishnan Commission.
और अप टू 10 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में हम बच्चों को कहते हैं कि यही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इससे बियॉन्ड आप जा नहीं सकते। मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी फॉर यू, इफ यू डू नॉट पास मैथमेटिक्स यू कैन नॉट स्टडी इन क्लास 11th। ये जो कंपल्शन था ना, ये जो 3 C's हमारे यहाँ थी ना, ये जो कंपल्शन है, ये जो हमारे कंपेरिजन है, you have got the 90% marks and you have got the 55% of marks, 90% marks, oh, you are a very precious student, you are a really 55, तुमको कुछ नहीं आता, तुम जाओ, तुम कुछ नहीं बन सकते हो। ये जो कंपैरिजन है, ये जो कंपल्शन है, ये जो कंपटीशन है, the 3 bad C's in our school education, इसको टैकल किया गया है आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति में by taking up this flexibility issue। ये पहली बार कहा गया है, never happened। If you had the chance to read the Kothari Commission report, I think that is a beautiful document, yet post-independent era में जो आया हुआ है। But it has also not talked about this flexibility in our 10 years of compulsory core curriculum। इससे हट के हम आज बात कर रहे हैं। Okay, no hard separations between academic and vocational subjects। Vocational subject has now made as a part of compulsory core curriculum। Yes, ये कहा गया, no hard separation now, it's a mix। No separations between streaming of subjects। ये नहीं कहा गया तुम तो साइंस स्टूडेंट्स हो, तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो, तुम साइंस पढ़ते हो, तुम तो कॉमर्स के हो, अरे तुम तो ह्यूमैनिटीज की हो, चलो तुम अलग बैठो। ये नहीं, there is no such separation now। Okay, that is also part of our national education policy। Innovative pedagogies की बात की गई है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई। कई टीचर हमसे पूछते हैं, सब ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है? जो पिताजी माताजी या हमारे ग्रैंडफादर देते थे, क्या वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है? नो, नॉट एट ऑल। हमने एक आपके स्टेट मीटिंग में मैंने अटेंड किया था, वहां पर ऑफिसर समझा रहे थे कि हमारे ग्रैंडफादर जो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग देते थे वही एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। नो, नॉट एट ऑल। ये सब गलत भावना है, गलत भावना लेकर हम चलते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन द एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। समझ गया? वन कैन बी मेजर्ड, experience based learning, its outcome cannot be measured, you cannot put any data into things, but experiential learning is altogether different। इस पे बात कहिएगा, how can we ensure innovative pedagogies in our classroom। Okay, competency based education, yes। आज आप क्लास 5 में बच्चा है, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए? our teacher need to know that, our children need to know that। आज तो सब चीज समझ में नहीं आता है कि क्लास 5 के बच्चे की क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए और उसी के अनुरूप हमको असेसमेंट करना चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वी हैव टू डिफाइन द कॉम्पिटेंसी एट ईच लेवल ऑफ स्कूलिंग इन ईच सब्जेक्ट, उसकी लर्निंग आउटकम, और उसी के बाद उसे कॉम्पिटेंसी डेवलप हो रही कि नहीं, उसी के असेसमेंट होना चाहिए। तो वी आर फर्स्ट टाइम नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि एक नेशनल बोर्ड ने जो अनाउंस किया था कि नाउ हमारे क्लास 10th और 12th में जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। मुझे बड़ी हंसी आती है इस मामले को देखकर। हम लोग कुछ जानकारी नहीं है, वी आर वर्किंग जैसे नॉविस, एमेचरिश। वी हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन नाइदर इन आवर करिकुलम डिजाइन, नाइदर इन आवर करिकुलम ट्रांजैक्शन। और जो पूछ को हम हिला रहे हैं कि नाउ करिकुलम इवैल्यूएशन में हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लाएंगे, ये सब बेकार की बात है। वी डू नॉट नो नथिंग अबाउट द एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हमें क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमें प्रत्येक टीचर को जानकारी होगी एट व्हाट लेवल, व्हाट आर द कॉम्पिटेंसीज। जैसे अभी हमने बताया कि एट द एंड ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज आवर चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोफिशिएंट, मस्ट बी वेरी गुड इन फ्लुएंसी इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये कॉम्पिटेंसी है हर बच्चा जो होगा। अगर उसने अचीव के लिए तो हमारा जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें हमारी अच्छी तरह से चल रही है। इफ दैट कॉम्पिटेंसी नॉट बीन अचीव्ड by our student, then something seriously wrong in our system of delivery। Okay, so competency based education बात किए गए। टीचर डेवलपमेंटल प्रोग्राम, टीचर्स की जब हम तैयारी नहीं करेंगे तो नथिंग विल हैपन एट द ग्रास रूट लेवल। ये टीचर डेवलपमेंटल प्रोग्राम हमको देने की बात कही। ये कहा गया ना, एवरी एकेडमिक सेशन each teacher will have to undergo 50 hours of continuous professional development। हम इसमें आगे बात करेंगे कैसे ये अचीव होगा, हमको जानकारी नहीं है। हमारे जब हम टीचर से जब प्रिंसिपल हमसे पूछते हैं अलग से कि साहब हम कैसे इसको करें अपने एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर आवर टीचर्स, मैंने कहा डू हैव एनी स्कूल बजट। 10 में से 7 लोग कहते हैं साहब स्कूल बजट क्या चीज़ होती है, हमें तो इसकी जानकारी नहीं है। मैंने कहा तो हम आगे क्या बताएं। हमने उनसे ये कहा कि 1.5 to 2% ऑफ योर स्कूल बजट मस्ट बी ईयरमार्क्ड फॉर द एम्पावरमेंट प्रोग्राम ऑफ आवर टीचर्स।
और तब आप करेंगे हाउ यू कैन एम्पावर योर टीचर, दैट इज सब्सिक्वेंट एक्टिविटी। पहले तो बजट तो यार करो कि इतना बजट हमारा होना चाहिए। नथिंग कैन हैपन विदाउट एनी बजट, विदाउट एनी फाइनेंस। तो टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम में बात करें, पहली बार ये कहा गया है आपके एजुकेशन पॉलिसी में इंडिया में कि नाउ द टीचर विल हैव ए प्रोफेशनल फोर्स। पहले हमने टीचिंग और टीचर्स को प्रोफेशनल अंडर में लिया ही नहीं था। एनपीएसटी अब तक आ जाना चाहिए था। वी आर नाउ डिलेड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। ये कहा गया था 2023 में आ जाएगा कि व्हाट आर द प्रोफेशनल कोड एथिक्स फॉर आवर टीचर्स। गुड, at least it has said now teacher as a professional force, and what will be its standard, that will be delineated subsequently. Abhi aaya nahi hai. I hope that by 2024 it will come, the professional code for our teachers. Transforming the assessment system. भाई परीक्षा व्यवस्था को अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो हमारे सिस्टम में सुधार नहीं होगा। आज जो हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं ना, सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। 20th सेंचुरी के माइंडसेट पर हम 21st सेंचुरी के बच्चों की आज हम असेसमेंट कर रहे हैं। क्या पूरी 100 साल का गैप। 20th सेंचुरी माइंडसेट पर हम 21st सेंचुरी के बच्चों की असेसमेंट करा रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि वी आर डूइंग द ग्रेट थिंग्स। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द असेसमेंट सिस्टम अक्रॉस स्टेजेस। देयर आर 4 स्टेजेस नाउ एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी: फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। एंड ऑल दीज स्टेजेस we have to transform the assessment system. इसमें हम बाद में बात करेंगे सेकेंड हाफ में। ओके, सेकेंड हाफ क्या है, इसी में बात सबसे। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एक बात कही गई कि स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कोठारी कमीशन भी कहा गया था स्कूल कॉन्सेप्ट सिस्टम, पर उसमें जो आइडिया था, उसमें जो कंसेप्ट था, अब जो एनईपी में कहा गया है उसमें अंतर है। इसमें स्कूल कॉम्प्लेक्स में ये कहा गया है कि देयर विल बी सेकेंडरी स्कूल, और उसके साथ 8-10 पेरीफेरी में 8-10 प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल को हम लिंक करेंगे, और वो सेकेंडरी स्कूल लीडर होगा जो इनको गाइड करेगा, असिस्ट करेगा, शेयर करेगा। शेयरिंग, केयरिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टुगेदर, ये इसका मोटो है। ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है कि एक गवर्नमेंट स्कूल के साथ एक प्राइवेट स्कूल जुड़े, ठीक है ना, और वो अपने आप को शेयरिंग करें, ये है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और लास्ट है आपका इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। बात ये कही गई कि इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। तो ये 10 पॉइंट्स है जो आपके एनईपी का निचोड़ है as far as the school principal are concerned, as far as the school head are concerned. 85% of NEP are now in इसी में समाहित है as far as the school head is concerned. अगर इसको आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आई थिंक, हमें नहीं मालूम आप लोगों से कितने लोगों ने एनईपी को पढ़ा है। जरा इंट्रोस्पेक्ट करके बताइए, ऑनेस्टली बताइए, बिकॉज आई विल बी आस्किंग दिस नाउ सब्सिक्वेंट क्वेश्चन आल्सो। बट कैन यू से someone amongst you, yes, I have read the NEP? Can anyone raise their hand confidently? No. And that is the feedback. थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा नहीं कह रहा हूं, हम थोड़ा थोड़ा के मतलब गहराई, जो पढ़ेंगे गहराई से पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है, तो मिडिल अप्रोच है, तो ना इधर है ना उधर है, तो शंकु की तरह लटक जाएंगे हम तो अगर थोड़ा थोड़ा में। No one can say today, if this is the situation, how can you read the NCF which is of 600 page documents? क्या इसे पढ़ेंगे आप? Can you ever thought of? पढ़ सकते हैं, मैं आपका इसका जानते हैं ना, इंडिया में 3 थिंग्स जो कभी एक जुगाड़ू व्यवस्था होती है जो कभी परिवर्तन नहीं होगा। आई कैन से अबाउट जुगाड़ू मैनेजमेंट, हाउ कैन आई रेड द 600 पेजेस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, बट दैट आई विल टेक सब्सिक्वेंटली, नॉट नाउ। अभी तो हम आपसे कहेंगे कि इफ यू कुड नॉट रेड द 30 पेज ऑफ NEP report on school education, how can we expect that you will go through the more than 600 pages of report of national curriculum framework, which is a plan of action, जो कि plan of action है school education के लिए। चलिए आगे चलते हैं, because they are not now the things that now ये तो हमने आपको बताया कि NEP का निचोड़ ये 10 point programs हैं। Now tell us, what are the things that the head need to look into and getting things transformed? क्या है? NEP तो आपने बात कर ली, अब क्या करना है स्कूल हेड को वो तो बताइए, आगे क्या करना है, ये इश्यूज है ना, प्लान ऑफ एक्शंस है। तो what are the priorities for the school heads? ये हमने कुछ प्रायोरिटीज में मेंशन किया है। आई एम नॉट गेटिंग टू, लेट अस लुक इनटू दोस प्रायोरिटीज। व्हाट आर द प्रायोरिटीज? यस,
ये है। नाउ हाउ टू प्लान एंड इंप्लीमेंट द करिकुलम अक्रॉस स्टेजेस। जब हम अक्रॉस स्टेजेस की बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि 4 स्टेजेस है, फाउंडेशनल स्टेज, प्रेप स्टेज, मिडिल स्टेज एंड द सेकेंडरी स्टेज। तो हाउ टू प्लान एंड इंप्लीमेंट द करिकुलम। करिकुलम डिजाइन से आपसे कोई मतलब नहीं है, दैट एनसीईआरटी इज ऑलरेडी डूइंग, स्टार्टेड, वो तो आ देंगे आपको डिजाइन से। बट हाउ टू इंप्लीमेंट एंड प्लान एंड इंप्लीमेंट दैट करिकुलम across stages as per the NCF 2023. Next, how to ensure effective pedagogy in the classroom. That's the question. How to ensure, based on that curriculum, how to ensure that effective pedagogy in the classroom as per NCF 2023. Third, preparing the pedagogical framework stage-wise and empowering the teachers accordingly. अगर आपने टीचर्स को प्रेप के लिए एम्पावर किया है तो बच्चा टीचर फाउंडेशन में कुछ नहीं कर पाएगा। वी नीड डिफरेंट अप्रोच एट ऑल द 4 स्टेजेस। तो पेडागोजिकल फ्रेमवर्क पहले बनाने की बात कर रहे हैं, एंड देन हाउ एम्पावर द टीचर्स अकॉर्डिंगली। हाउ टू इंप्लीमेंट वोकेशनल एजुकेशन अक्रॉस द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये अब हमारा प्लान ऑफ प्रायोरिटीज की हम बात कर रहे हैं, जो हमें करना है बेस्ड ऑन द एनईपी एंड एनसीएफ। Ensuring the art education and physical education across stages in the school, because now art education and the physical education has now been made part of the curriculum. पहले ये co-curricular activities में था, extra curricular के activities में था, so now it is a part of curriculum. So how to ensure art education and physical education in the school? Preparing assessment strategies across stages as per the NCF 2023. और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, HPC, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की डेवलपमेंट की बात कही गई है। These are some of the issues that I have actually delineated, हमने अंडरलाइन किया है, that should be given priorities immediately for the school heads as based on the NCF 2023 and NEP 2020. But this is the macroscopic picture. जो अभी हमने आपको 8-9 बताए हैं, this is just a macroscopic picture. Now we have to jot down the microscopic issues in each sphere of curriculum process. Curriculum design में हमें उन microscopic issues को डिजाइन देखना पड़ेगा। करिकुलम पेडागोजी में, ट्रांजैक्शन में हमें माइक्रोस्कोपिक इश्यूज को जॉट डाउन करना पड़ेगा। करिकुलम असेसमेंट में 3 डायमेंशन ऑफ करिकुलम पॉलिसी, उसमें हमको जॉट डाउन करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दीज प्रायोरिटीज which has been underlined or which has been enunciated in the National Curriculum Framework 2023. Let us now see some what we mean by this microscopic issues. उसको भी देख ले, ठीक है। लेट अस, करिकुलम पेडागोजी में हमने अंडरलाइन किया, असेसमेंट में हम बाद में बात करेंगे। करिकुलम पेडागोजी में बात करेंगे। लेट अस नाउ लुक इनटू दिस माइक्रोस्कोपिक इश्यूज, इंप्लीमेंटेशन इश्यूज। पहला जी है हाउ टू इम्पार्ट एजुकेशन मूविंग फ्रॉम प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रोट लर्निंग टू एक्सपीरियंशियल मोड। टीचर हमसे पूछते हैं कि सर हम तो रोट लर्निंग के आदी हैं, हमें पढ़ाई भी ऐसे गया है, why can't we teach them the way we have been taught and educated? Why we can't teach them the present generation? मैंने कहा ना, वो रोट लर्निंग का एरा था। Now you have to change your pedagogy from rote learning to experiential mode. ये एक इश्यूज है, जो बेसिक इश्यूज इसमें कहा गया है। So much of emphasis on empathy and emotional intelligence has been put into the NEP. बहुत सारी बात कही गई है empathy पर और emotional intelligence of children पर has been initiated in NEP. But how it can be reflected in classroom pedagogy, keeping in mind the large class size. भाई 40-50 के बच्चे हमारे क्लास साइज में हैं. How can implement these issues looking into the every child's empathy and the emotional intelligence? How we can do that? तो दिस इन करिकुलम अभी तो पेडागोजी की हम बात कर रहे हैं, अभी तो एक ही चीज लिया है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर बहुत बात कही गई है इस समय। वाई? एक चीज मैं आपको बता दूं, द एरा ऑफ इन्वेंशन इज ओवर। अगर आप बहुत कोशिश करेंगे कि हम आज आइजैक न्यूटन और आइंस्टाइन या हम भूल जाइए आप, बिकॉज द एरा ऑफ इन्वेंशन इज ओवर। टुडे देयर इज वेव ऑफ इनोवेशंस। आज बच्चा अगर इनोवेटिव नहीं है,
आज बच्चा को अगर क्रिएटिव आपने नहीं बनाया है उस स्टेज पर 14 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के अंदर, बच्चा आने वाले दिनों में कहीं कुछ सक्सीड नहीं कर पाएगा. The entire thing has changed. There is now radical transformations in the field of work and employment. There is no employment now in the organized sector. 95% of the employment are now in the unorganized sector. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मांग रहा है कि तुम इनोवेटिव हो कि नहीं, दिखाओ कोई एग्जाम्पल. तुमको हम ये केस दे रहे हैं, कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो वी हैव टू मेक द चाइल्ड इनोवेटिव एंड क्रिएटिव इन द वेरी स्टार्टिंग प्रोसेस, द लर्निंग प्रोसेस. ये बनाना होगा. तो हमें अपने पेडागोजी में चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने करिकुलम डिजाइन में चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने असेसमेंट में चेंज करना पड़ेगा. ये कोई बड़ी बात नहीं है. ओनली दैट यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट और यू हैव टू चेंज योर स्किल सेट. उसको हम चेंज नहीं करना चाहते हैं बिकॉज वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर कंफर्ट जोन्स. उससे हट के, इसीलिए पहले ही हमने ये सब बातें कही है. वी हैव टू नाउ कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन्स. हाउ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी इम्बाइब्ड इन द क्लासरूम विथ एम्पैथेटिक अप्रोच. कैसे हम करेंगे? ये इश्यूज चैलेंजिंग है. ये इश्यूज पर हमें आज बात करनी है. व्हाट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड for implementing vocational education, particularly from class 6 onwards, and how it can be made compatible with NSQF, National School Qualification Framework. ये 10 लेवल ऑफ स्किल है, 10 लेवल की बात है. ये 10 ग्रेड है इसमें NSQF की. उसमें अगर बच्चा हमारा वोकेशनल एजुकेशन लेकर क्लास 10 सक्सीड करेगा तो उसको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे इक्विवेलेंस. वन इज द क्लास 10th ग्रेड सर्टिफिकेशन एंड अनदर इज इक्विवेलेंट टू NSQF 1 and 2. देखिए बहुत चीजें चेंजेस है, वही तो हम कह रहे हैं. ये चीज इतना परिवर्तन हम इसको समझ रहे हैं कि क्या चीज हम समझ रहे हैं. तो NSQF के 1-2 के इक्विवेलेंस होगा बच्चा जो क्लास 10 दा सक्सीड करेगा. एंड इफ ही टेक्स द वोकेशनल एजुकेशन एट 11th and 12th, he will be given certificate, of course the class 12 plus NSQF 3 and 4. 4 level of NSQF की उनकी इक्विवेलेंसी हो जाएगी स्किल्स की if he pass the now class 12. अब ये दिक्कत कैसे इंप्लीमेंट होता है, दैट इज नीड टू बी सीन. बाकी आपको माइंड में तो जानकारी होनी चाहिए यार, आने वाला दिन में क्या होने जा रहा है. ये जब आप उसके लिए तैयारी नहीं होंगे, कमांड नहीं कर सकेंगे, फिर तो जब एक्चुअल समय आएगा यू विल फॉल फ्लैट, मैदान से आप भाग जाएंगे. तो ये चीज है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर इंप्लीमेंटिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम व्हाट पेडागोजिकल अप्रोच बी देयर इन आर्ट एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन. विल इट बी द सेम फॉर जस्ट एनी अदर सब्जेक्ट और इट हैज टू बी डिफरेंट? ये डिफरेंट होगा. ये पार्ट ऑफ करिकुलम एक्टिविटी है. वो आपका पेडागोजी नहीं होगा जो आप इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस में पढ़ाते हैं. इट हैज टू बी डिफरेंट. आर्ट एजुकेशन में सब आ रहा है. विजुअल आर्ट्स आ रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स आ रहा है, डांस आ रहा है, थिएटर आ रहा है, स्कल्पचर आ, सब आ रहा है. उसमें से एक आपको बच्चे को लेना होगा एज पर द चॉइसेस यू विल बी गिवन इन द स्कूल. ओके. व्हाट असेसमेंट स्ट्रेटेजीज नीड टू बी फॉलोड अक्रॉस स्टेजेस. ये सब हम करिकुलम पेडागोजी, ये तो हम बात करेंगे. दिस आई विल टॉक सब्सिक्वेंटली. एंड नेचर ऑफ HPC, क्या इसका नेचर होगा. समवन विल कम फ्रॉम द जुपिटर, विल टेल अस कि इस तरह से HPC बनाओ. नो, सब कुछ स्कूलों ने तो बना दिया ऑलरेडी HPC अप टू क्लास 8 तक, क्योंकि वी हैव ऑटोनॉमी अप टू क्लास 8. उन्होंने NEP को देखा, NCF को देखा और HPC बना लिया. एंड व्हाट विल बी द रोल ऑफ सेल्फ असेसमेंट, इसको भी बात करेंगे. पीयर असेसमेंट एंड द पेरेंट असेसमेंट इन इट, जो HPC हम डेवलप करेंगे. होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड फॉर चाइल्ड कई स्कूलों ने कर दिया. हम एक आध दोनों ने हमको भेजा भी है, सब हमने ये HPC भेजा है. इज इट ऑन द राइट लाइन या हमको कुछ चेंज करना है? दोज हु आर वेरी प्रोएक्टिव. ओके. सो ये है हमारे पास इस समय इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, ये है हमारे पास जो है आपकी इश्यूज है. सो यू नो दैट, सो यू नाउ यू विल एग्री दैट दिस इज रियली ए ट्रांसफॉर्मेटिव, दिस रिक्वायर एक्चुअली न्यू माइंडसेट्स. डेफिनेटली इस इश्यूज जो हम बात करते हैं, सो वी रिक्वायर न्यू माइंडसेट, न्यू स्किल सेट्स, न्यू स्ट्रैटेजीज एंड न्यू प्रोसेसेस. ये हमको आज जरूरत है. We have to entire new paradigm of academic leadership का रोल आपको एज ए स्कूल हेड निभाना पड़ेगा. एकेडमिक लीडरशिप, आप, मैं जानता हूं
आपके लीडरशिप में जो एकेडमिक लीडरशिप भी है, आपके जो पैरा एकेडमिक लीडरशिप भी है, और आपको नॉन एकेडमिक लीडरशिप भी प्ले करना पड़ता है। पर 50% ऑफ ड्यूटीज यू मस्ट ईयर मार्क एज एन फॉर एकेडमिक लीडरशिप के लिए, ये आपको आज करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस यू हैव टू न्यू माइंड सेट्स एंड द न्यू स्किल सेट्स। ओके, सो नाउ thinking leadership now has become a important thing. Yes, thinking leadership. You have to become a thinking individual, thinking leadership. So now I can ask, why thinking has become so important now, so critical now? Why? Why is it there? क्या पहले thinking leadership नहीं था, या आज नहीं है? Whether not that heads are not thinking at all. ये हम बात नहीं करें, thinkers are not at all. Thinkers were, heads are thinking. Because without thinking happening in a school, there could not happen any learning. ऐसा नहीं था learning अब तक नहीं हुई है. Think हमारे head ने think कर रहे हैं. And they have ensured learning at a school level. Because you know that if there is no learning at all, our students would not have achieved so much earlier, or would not have achieved so good performance up to now, so much of laurel now. There was, but then what type of thinking, that is now important in the present context. जो thinking हम पहले करते रहे वही चलेगा, कि you need to change the thinking process. That's the thing actually. So that's the important thing, which will lead to action for implementation of NEP and NCF. उसमें आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को आपको चेंज करना पड़ेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, कैन वी जस्ट पॉज आफ्टर ऑफ कोर्स ऑल दोस डेलिब्रेशन, कैन वी जस्ट पॉज एंड इंट्रोस्पेक्ट? आर वी रेडी फॉर इंप्लीमेंटिंग NCF 2023? आज अगर कल अनाउंस होता है NCERT से, ओके फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक सेशन इन ऑल द 5 classes, are we be in a ready position to implement the NCF 2023 in 5 classes? We need to pause and introspect ourselves. If yes, we are ready, तो मैं फिर आपसे पूछता हूं, do you allow your students, your children, sufficient time and space for imagination in the classroom? क्या हम अलाउ करते हैं? हमारे समय तो अलाउ नहीं था। आई वॉज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, आई वॉज वेरी गुड इन साइंस। एक आध बार पूछा हमने खड़े होकर कि सब सो मच ऑफ टाइम हम अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने पूछा लीनियर इक्वेशन, मैंने क्लास 8 में पूछा क्यों हम बिता रहे हैं, व्हाट इज इज एग्जैक्ट, क्या आवश्यकता होगी आने वाले जीवन में? हमको बैठा दिया गया, कहा कि चुप, बहुत तुम बोलते रहते हो, जो हम करा रहे हैं उसको नोट करो। उस समय तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि इतना बोलने के बाद फिर हम आर्गू करें। आज तो बच्चा आर्गू करेगा, आज तो बच्चा आपके पीछे कहेगा कि हमारे टीचर को जानकारी नहीं है। दे हैव टोल्ड मी, ए क्लास 11th स्टूडेंट, कि माय टीचर स्टार्टेड रिपीटिंग इन माय क्लास, व्हाई शुड आई अटेंड द क्लास नाउ? ए ब्रिलियंट चाइल्ड इन DPSR के पुरम, व्हाइल हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे उसमें टीवी शो में, ही टोल्ड मी कि देयर इज नो पॉइंट इन अटेंडिंग क्लास बिकॉज माय टीचर स्टार्ट रिपीटिंग। हमारे जमाने में तो कर नहीं सकते, तो हमें नहीं मालूम था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस आपके जो है ये क्यों इतना कर रहे हैं, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल। आज का बच्चा आपको, तो हमें आज के इस क्लासरूम में बच्चों को इमेजिनेशन पर अलाउ करना होगा। बट देन अगेन आस्क, व्हाई इमेजिनेशन एंड व्हाट विल लीड टू? क्या आवश्यकता है इमेजिनेशन की? क्यों हम इसमें समय बिताएं? हम अपना कोर्स कंप्लीट कराएंगे उस दौरान? No, you can't, because this imagination, अब imagination का मैं एग्जाम्पल दे दूंगा एक, अगर हमें टाइम मिलता है, because this imagination later on will lead to innovation. Imagination comes from reading, इसीलिए आपको देखा होगा कि NEP में अगर पढ़ेंगे तो देखा होगा अर्ली रीडिंग, फास्ट रीडिंग, रीड विथ कंप्रीहेंशन, इस पर जोर दिया गया फाउंडेशन स्टेज पर। इट इज सिंपली बिकॉज कि देन चाइल्ड विल हैव इमेजिनेशन, and this imagination will then lead to innovations and creativity, and then this innovations and creativity will then lead to entrepreneurship later on in their life. बच्चा entrepreneurial तभी हो पाएगा जब उसमें innovations और creativity पैदा होगी, और innovation और creativity तभी पैदा होगा जब बच्चे को imagination करने का क्लासरूम में मौका देंगे। Because this entrepreneurship
then will lead to income generations later on in their life. And this income generation will then further lead to better quality of life and the higher quality of life. ये है एजुकेशन का जो अल्टीमेट एम है, so that our child can lead a better quality of life and the higher quality of life. That is the ultimate aim of our educational process. और ये इसकी साइकिल है, इस तरह से जाता है. इमेजिनेशन का मैं आपको कुछ पूछा था, किस तरह की इमेजिनेशन की बात कर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, सो दैट बिकॉज मेरे पास बहुत सारे आज बात करने के लिए है. एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, सो दैट थिंग्स बार बिकम क्लियर. मैं एक स्कूल में गया, आई वॉज एन सीबीएसई चेयरमैन. सामने एक स्कूल बच्चा, इस क्लासरूम में बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था. प्रिंसिपल तो दौड़ के आए, अपने चैम्बर से उठकर, कैसा आइए पहले एक कप चाय पी लीजिएगा, चाय तैयार है. मैंने कहा नो, इस क्लास में कुछ हल्ला हो रही है, लेट मी एंटर इनटू दैट. क्लास 7 का क्लास था. गए, बच्चे हल्ला कर रहे थे. आई लाइक ए नॉइजी क्लास, आई ऑलवेज लाइक, देन ए वेरी साइलेंट एंड पीसफुल क्लास, वो हमें लाइकिंग नहीं है. ठीक है, गए, मैंने कहा बच्चे क्यों भाई, क्यों हल्ला कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग. सर आवर टीचर इज एब्सेंट टुडे. मैंने कहा ओके फाइन, प्रॉक्टर साहब, ओके गुड, बट व्हाट क्लासेस दिस. उसने कहा सब साइंस क्लास है. मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छा चलो बात करते हैं. मैंने कुछ खेल कूद तो बात किया, आई वॉज वेरी कीन ऑन स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली में, तो उससे बात किया, पूछा गुगली बॉल क्या होती है, चाइना मैन क्या होती है, ये सब पूछा. एक कोने पर उस क्लासरूम में एक कार्टन पड़ा हुआ था. तो मैंने कहा बच्चे बताओ तुम्हारे वेट क्या है, व्हाट इज योर वेट. सबने हाथ उठा लिए, सब मेरा 10 किलो है, मेरा 12 किलो है, मेरा 14, एक ने बच्चा है मेरा 15 किलो है. मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है. मैंने कहा वो कार्टन देख रहे हो, कहाँ से वो एक कार्टन पड़ा, वो खाली है फिर साहब. मैंने ऐसा सोचो, ये अगर 60 kg वेट का है, इफ दिस कार्टन इज वेइंग 60 kg, कैन यू लिफ्ट दिस कार्टन ऑन योर शोल्डर. हिंदी में मैंने पूछा उनसे, ताकि बच्चे हंसने लगे. वो हमको सोचा कि ये तो बड़ा बेवकूफ आदमी है भाई, मैं 10 किलो वेट का, 12 किलो का वेट का हूं, और मुझसे कहा जा रहा है कि 60 kg के वेट को हम अपने कंधे पर उठाएं. मैंने कहा सर नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल. मैंने कहा सोचो एक बार, सोचो कैसे तुम इस कार्टन को जो है उठा सकते हो, तुम्हारा अगर 10 kg वेट है, 12 kg वेट है. अधिकांश बच्चे ने जो हताश हो गए. मैंने कहा अच्छा ग्रुप बनाओ, सोचो, मैं तुमको समय दे रहा हूं 10-12 मिनट का, सोचो. तो बच्चे आपस में बात करने लगे, वो करने लगे. अंत में करीब 7-8 मिनट के बाद एक बच्चे पीछे था, उसने हाथ उठाया, सर आई कैन लिफ्ट इट. मैंने कहा व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर वेट. सब 12 kg करीब है. मैंने कहा अच्छा. मैंने हाउ कैन यू लिफ्ट दिस 60 kg वेट ऑफ दिस कार्टन. उससे आप चंद्रमा में भेज दीजिए, हिंदी बता, आज मुझे चंद्रमा में आप भेज दीजिए, मैं इस कार्टन को उठा लूंगा. सी दैट इनोवेटिव माइंड ऑफ द चाइल्ड. जानता है चंद्रमा में इस कार्टन की वेट 10 kg हो जाएगी, वो ये नहीं जान रहा कि उसके भी वेट कम हो जाएगा, but still he has made a thinking. See the brilliant mind of that student. उसने आप भेज दीजिए, मैं इस कार्टन को उठा लूंगा, उसका वेट कम हो जाएगा. ये इमेजिनेशन है. और भी इमेजिनेशन, मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं. ये इमेजिनेशन क्लास नहीं है, कभी एक स्टॉप होगा. एक बिल्डिंग सामने खड़ी हुई थी, मैंने कहा बच्चों को 6 ग्रुप में बांट दिया, मैंने सबके हाथ में एक बैरोमीटर दे दिया. ये दूसरे स्कूल की बात है, बैरोमीटर दे दिया. मैंने कहा अच्छा बच्चा तुम 6-6 ग्रुप के हो, ये देखो बिल्डिंग देख लो, हाई राइज बिल्डिंग, इस बैरोमीटर से जो है आप इस बिल्डिंग की जो है हाइट को नापो. बच्चे फिर हंस पड़े कि बहुत बेवकूफ आदमी तो है. कहते बैरोमीटर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापी जाती है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे नापेंगे. मैंने कहा सोचो, डू द थिंग्स, डू द एक्सरसाइज एंड कम आउट विथ योर रिपोर्ट इंडिविजुअल. ये चीजें है इमेजिनेशन. तो आप, इसीलिए मैं कहता हूं टीचर से, अगर 40 मिनट का आपका पीरियड है, if you have 40 minutes period, your lesson plan should be made only of 25 minutes. 20 और 25 मिनट से ज्यादा लेसन प्लान होनी नहीं चाहिए. अदर चीज के बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए, बच्चों को एंगेज करने का मौका दीजिए. ये तभी हो पाएगा जब आपकी लेसन प्लान, और आप ये कहेंगे हाँ भाई बच्चे कल हम 19 पेज पर थे, चलो आज 20 पेज खोलो, टेक्स्ट बुक निकालो, आज हम 20 पेज से पढ़ना शुरू कर देते हैं. रिपीटिटिव एक्सरसाइज है. क्या हम इनोवेटिव पेडागॉजीज की बात कर रहे हैं और क्या हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं. चलो ठीक है. सो दिस इज हाउ द थिंग्स दैट इमेजिनेशन हैज टू बी गिवन द इंपॉर्टेंस. ओके, सो नाउ ओके, ये हो सकता है कि द स्कूल्स में बी डूइंग एक्सेलेंट रिपीटिटिव एक्सरसाइजेस, प्रोड्यूसिंग एक्सेलेंट बोर्ड रिजल्ट्स ईयर आफ्टर ईयर. Can we call this school as great schools? मेरी संकल्पना, my answer, मेरी संकल्पना विपरीत है. Just producing the excellent repetitive exercises
of producing excellent board results. If you can call yourself as a great school, sorry, I may agree to disagree. Okay. Every school, जब तक स्कूल इनोवेटिव पेडागॉजीज को इन्वॉल्व नहीं करेगा, जब तक स्कूल अपने इफेक्टिव पेडागॉजी क्लासरूम में नहीं लाएगा, स्कूल कैन नॉट कॉल देमसेल्व्स द ग्रेट स्कूल्स. और अगर आप एनसीएफ को आप देखेंगे, उन्होंने एक चैप्टर इसके लिए, हाउ टू इंश्योर द इफेक्टिव पेडागॉजी इन द क्लासरूम, उसको मेंशन किया. तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट थिंग्स. हमारा काम नहीं है कि एनसीएफ चीज़ों को रिपीट करना. हमने सिर्फ कुछ पॉइंट्स ले लिए, कुछ पीरियड कि हाउ कैन यू एंश्योर, और उसके बाद अपना एक मॉडल बना है इनोवेशंस करके कि किस प्रकार से, कि हाउ टू एंश्योर द इफेक्टिव पेडागॉजी इन द क्लासरूम. सो हाउ टू एंश्योर द इफेक्टिव पेडागॉजी इन द क्लासरूम्स. यस, ना की एलिमेंट्स जो एनसीएफ में है, मैं इसमें से अपना कोई पॉइंट नहीं डाला, ये अब जो मैं दे रहा हूं ये आपने एनसीएफ से लिया, प्योरली एनसीएफ से लिया है. वी नीड टू एंश्योर रेस्पेक्ट, केयर, लव, ट्रस्ट हमें स्कूल में लाना पड़ेगा. वी हैव टू एंश्योर द स्कूल मस्ट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट सो दैट चाइल्ड मे फील सिक्योर एंड सेफ. एंड द रिलेशनशिप किसका मतलब है, टीचर एंड स्टूडेंट्स में, एंड द रिलेशनशिप आर गवर्न बाय केयर, इक्विटी, रेस्पेक्ट, लव एंड ट्रस्ट. ये हमको जो है बिल्ड करना पड़ेगा टू एंश्योर द इफेक्टिव पेडागॉजी. ओके, सो एडुकेयरिंग की बात फिर से करूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एडुकेयरिंग इज इक्वल इंपॉर्टेंट देन एडुकेटिंग. ओके, इन ऑर्डर टू बिल्ड ट्रस्ट, व्हिच इज द अल्टीमेट थिंग, ए स्कूल हेड must have 3 C's. 3 C's, a school head. क्या क्या है उनमें? फर्स्ट, कॉम्पिटेंस. सेकेंड, कनेक्शन. थर्ड, कैरेक्टर. कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, जब मैं एटीआई में गया था, आफ्टर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हम लोग को एटीआई में भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए. 1 साल की ट्रेनिंग थी. उसमें हमारे इंस्ट्रक्टर थे, सीनियर आईएएस ऑफिसर. उसने कहा, सी स्टूडेंट, हम लोग कहा कि I do not know the steps which will lead to success in your life, but I can tell you the 4 stages which for you will not make unsuccessful in your attempt. देखिए, बड़ी अच्छी बात है. सक्सेसफुल का फल मेरे पास मंत्र नहीं है, पर हम 4 स्टेज बता सकते हैं जिसमें आपने जीवन की आप अनसक्सेसफुल आप नहीं होंगे. थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, वेरी गुड वे ऑफ सेइंग. उसने कहा था, इसको हम आप डिटेल में नहीं, उसने 4 स्टेप क्या कहा था? फैक्ट, एक्ट, टैक्ट, कॉन्टैक्ट. अब हम डिटेल में नहीं बताएंगे. फैक्ट मतलब रीडिंग है, बहुत अच्छा कहा था. 4 स्टेप्स. ए स्कूल हेड मस्ट हैव फैक्ट, जानकारी होनी चाहिए. एनईपी को अगर नहीं पढ़ा है वो स्कूल हेड कुछ नहीं कर सकता. फैक्ट की जानकारी नहीं है, वो एक्ट क्या करेगा? फैक्ट की जानकारी है तभी तो आप एक्ट करेंगे. और एक्ट आप कहीं नहीं कर जाओ तो आपका टैक्ट नहीं होगा. टैक्ट इज ए थिंग विच इज नॉट एन एब्सोल्यूट, इज ए रिलेटिव. आप जिस जैसा टैक्ट लेंगे किसी प्रॉब्लम को संभालने में, हम शायद दूसरे टैक्ट लेंगे, बट टैक्ट इज इन देयर. तो यही फैक्ट, एक्ट, टैक्ट, कॉन्टैक्ट. तो ए स्कूल हेड मस्ट हैव 3 C's होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड ट्रस्ट इन द स्कूल सिचुएशन, स्कूल एनवायरनमेंट. एंड दैट 3 C's आर कॉम्पिटेंस, कनेक्शन एंड कैरेक्टर. ओके, गाइडिंग टीचर्स to build positive teacher-student relationship. This is important both for cognitive as well as socio-emotional development. NCF ने again narrate किया है some of the, उसमें मैंने कुछ लिया है, how to build teacher-student positive relationship. So, some important step to build positive teacher-student relationship: to know each student individually, listening carefully to students, ठीक है ना? Observing students, yes, encouraging questioning, classroom में encourage करना है questioning, and recognizing and responding to the emotions of students. ये बहुत important चीज़ है. ये जो जब emotional conflict हो जाता है तो some serious things happen. राजस्थान में हुआ था एक केस में जहाँ पे एक स्कूल प्रिंसिपल को जो है एक स्टूडेंट ने जो है कमरे में घुसकर जो है फायरिंग कर दी थी. मैं जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, why did it happen? It should not have happened. तो फीडबैक मुझे मिला, मैंने कहा समथिंग सीरियसली रॉन्ग. उसको हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे. तो पर क्योंकि इससे मैं और करता रहता हूँ इसमें,
तो ये चीज है कि यू नीड टू रेस्पेक्ट द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, और सबकी इमोशन समान नहीं होगा, सबकी इमोशन, यू नीड टू रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इमोशंस। ये उसमें कहा गया, सब एनसीएफ में रिपीट किया गया। इसमें कभी आप एनसीएफ को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं कि हाउ टू एंश्योर द इफेक्टिव पेडागोजी इन द क्लासरूम। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें हैं इफेक्टिव स्कैफोल्डिंग। व्हाई कांट यू प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एंड स्कैफोल्डिंग आप जानते होंगे, जब बिल्डिंग बनाते हैं तो यू पुट ए स्कैफोल्डिंग एंड व्हेन द बिल्डिंग इज कंप्लीट दैट स्कैफोल्डिंग इज रिमूव्ड एंड द बिल्डिंग स्टैंड ऑन इट्स बेस। वही चीज हमको क्लासरूम में भी लाना है। एंड एवरी स्टूडेंट नीड्स हेल्प एंड गाइड। मैं बता दे रहा हूं, एवरी स्टूडेंट वी नीड टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्ट देम एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। सो इन दिस प्रोसेस को हम कहते हैं GRR, याद है, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये GRR से फेमस है वर्ल्ड ओवर, GRR से फेमस है, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैफोल्डिंग, वेयर फर्स्ट टीचर एक्सप्लेन आइडियाज एंड इश्यूज। टीचर पहले एक्सप्लेन करता है, उसके बाद देन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर्क टुगेदर एंड टीचर्स प्रोवाइड द गाइडेड सपोर्ट। करके पूरा नहीं करता है ताकि बच्चा इंगेज रहे, बच्चा एक्सप्लोर करे। एंड फाइनली टीचर्स विथड्रू एंड द स्टूडेंट्स वर्क ऑन इट इंडिपेंडेंटली एंड इंडिविजुअली। ये है स्कैफोल्डिंग। ये क्लासरूम प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल अप्रोच है स्कैफोल्डिंग। और एवरी स्टूडेंट्स नीड सपोर्ट। ये कहा जाता है हम वीक स्टूडेंट उनको सपोर्ट किसने कहा है? Every student needs support, I'm telling you. It's not the physically disabled or the extraordinarily disabled or the other, they need support. Every student needs support. Okay. Using the differentiated instruction, differential homework. क्लास 8 तक सभी को एक ही क्लास में सब एक टाइप का होमवर्क दिया जाता है। Why? It is not a homogeneous class. It's a heterogeneous class. How can you give it? Had it been a homogeneous one, then we could have given the same assessment, same homework. If it is a heterogeneous one, we have to provide them the differential approach, differential homework. Yes, providing opportunities for independent and collaborative work, दोनों देना पड़ेगा. Using the varied resources, teacher must use the varied resources. Textbook based learning नहीं होना चाहिए. बच्चा textbook रखेगा, but you have to handle the varied resources. Helping students develop appropriate work habits and responsibility. ये class 8 तक होना चाहिए. उसके बाद जानते हैं there are two words, habits and attitudes. Attitude once formed up to class 8 or age of 15, it cannot be changed. Habits can be changed later on in their life. Smoking, drinking are habits. Attitude kya? If a child is not diligent up to class 8, up to age of 15, you cannot make him diligent later on in their life. There may be an exception, but exception cannot be generalized. Okay, these are the things actually. So appropriate work habit and responsibility and giving prompt, appropriate and meaningful feedbacks. Let me go a little bit faster. So that yes. So now तो ये जो हमने बताया आपको, then I built on my thinking process लगा कर can we make it a framework? Because our one चीज मैं आपको बता दूं, the academic our system जो जनरल एजुकेशन सिस्टम is not robust. हम लोग जिस दौर से गुजरे हैं उस समय हम लोग का बड़ी रोबस्ट लाइफ, बड़ा टफ लाइफ था। आज वो जो चल रहा है ना, फिल्ट्रेशन एंड कटिंग ऑफ द सिलेबस करते करते ऐसी स्थिति में आ गई है कि रिगर नाम की चीज हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम में आज खत्म हो रही है, एंड दैट्स ए वेरी बैड थिंग। अगर आपने इस एटीट्यूडल फ्रेम बिल्डअप में अप टू द एज ऑफ 15 और क्लास 8 में आपने रिगरस लाइफ उनको नहीं बनाया, दे कैन नॉट डू एनी रिगरस थिंग लेटर ऑन इन देयर लाइफ। मैं बता दूं आपको, तो ये किस प्रकार की हम सिटीजनशिप क्रिएट कर रहे हैं, आई डोंट नो। आई हैव रियली टॉक द पीपल हु आर फ्रेमिंग नाउ दिस डेज दिस, ये बना रहे हैं, I've talked to them, they are in touch with me also. But let me see how does it comes out. So ये framework की मैंने बात कही है, 3R framework. Our heads needs to implement this framework from the very early in the schooling process. Relevance, relationship और rigor. ये Wilmer Daggett की latest formula है how to ensure effective pedagogy in the school system. विल्मर डैगट की 3R फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क में सबसे खूबी चीज यह है कि दिस इज इनकॉर्पोरेटिंग द ह्यूमन वैल्यूज ऑफ ईस्टर्न फिलॉसफी। ईस्टर्न फिलॉसफी में हमारा ह्यूमन को वैल्यू दी जाती है विद द एकेडमिक रीगर ऑफ वेस्टर्न थॉट्स। इसको जोड़ा गया है द ह्यूमन वैल्यूज ऑफ ईस्टर्न फिलॉसफी विद द एकेडमिक रीगर ऑफ वेस्टर्न थॉट्स। इस फॉर्मूले में हम ये कह रहे हैं
कि वंस द चिल्ड्रेन, ये फॉर्मूला है, द रेलिवेंस, रिलेशनशिप एंड रिगर, इसमें हम कह रहे हैं कि वंस द चिल्ड्रेन फोर्ज एन एंड्यूरिंग रिलेशनशिप विथ हिमसेल्फ, क्या हम बनना चाहते हैं, विथ लर्निंग, विथ टीचर्स, विथ एनवायरमेंट, विथ पीयर्स, जब ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, देन चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ लर्निंग। देखिए आज जो बात है कि हमारे बच्चों को जानकारी नहीं है कि हम क्यों लर्निंग कर रहे हैं, क्या रेलिवेंस है, क्या लीड करेगा। सो वंस वी पुट अप ए रिलेशनशिप ऑन ए गुड फुटिंग, they understand the relevance of learning, and this relationship will ensure the rigor in their schooling process. Important समझेगा क्यों हम rigor कर रहे हैं, क्यों हम इतना मेहनत कर रहे हैं। It's a beautiful formula. Our heads only needs to ponder over this. बस उनको खाली ponder करें और start करें कि how we can implement this formula from in the starting in our schooling system from class 3 onwards, and evolve appropriate strategy to make it happen. हम इसलिए इस चीज को कह रहे हैं कि देखिए एक चीज मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि नथिंग विल इंप्रूव, नथिंग विल हैपन एट द ग्रासरूट लेवल अनलेस एंड अनटिल द हेड मेक्स द मूव फर्स्ट। जब तक आप पहला मूव नहीं करोगे अदर्स तभी तो फॉलो करेगा, एंड यू कैन ओनली मेक मूव व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंस। तो यू हैव टू मेक द मूव फर्स्ट। अब ये ना वेट करिए कि समवन विल कम फ्रॉम द जुपिटर से, वो चंद्रमा से आएगा एंड विल टेल यू हाउ टू मेक दिस थिंग्स हैपन, वो फिर आपका जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी चली जाएगी। ओके, सो नाउ चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस है इंप्लीमेंटेशन में? यस, हमने तो इतने कह दिया कि आपको ये करना ये करना, पर देयर आर चैलेंजेस, और इस चैलेंजेस को मैंने m to the power 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, m to the power 4 और 4m। 4m अच्छा नहीं लग रहा था, पहले हम m to the power 4 नहीं बना पा रहे थे, इसलिए मैंने 4m रखा, फिर मैंने किसी को दिया, उन्होंने फिर m to the power 4 बना के हमारा भी जोड़ दिया और 4m। अदरवाइज आई वुड हैव प्रेफर्ड इट m to the power 4, पर हम बना नहीं पा रहे थे m to the power 4 ये इसको बनाने में, तो m to the power 4 कहेंगे कि दीज आर द चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस है? मैन, मशीन, मनी एंड मटेरियल्स। ये वास्तव में चैलेंज है इंप्लीमेंटेशन में, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि आसानी से इंप्लीमेंट नहीं होगा जब इस चैलेंजेस को हम रिमूव नहीं करेंगे। मैन में क्या है? हमें अप्रोप्रिएट मैन पावर चाहिए। नॉट ओनली दे अंडरस्टैंड द टीचिंग मेथोडोलॉजी बट ऑल्सो मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल विद द टेक्नोलॉजी। अप्रोप्रिएट, हमें अप्रोप्रिएट मैन पावर चाहिए जो एज ए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करेगा। हमें अप्रोप्रिएट मैन पावर चाहिए इन आर्ट्स एजुकेशन को एग्जीक्यूट कराने में, स्किल टेक्निकल हैंड्स को लेने में। हमें वो मैन पावर चाहिए जिसकी पहले रीलर्निंग अनलर्निंग होगी, एंड दे विल रीलर्न। जब तक अनलर्निंग नहीं होगी वो कहेगा हम तो इसी ढंग से पढ़े हैं, हमको पढ़ाने दीजिए, अदरवाइज हमको नहीं पढ़ाना आएगा। नहीं, तो इसीलिए रीलर्निंग इज वेरी नीडफुल, एंड देन अनलर्निंग देन रीलर्निंग, so that the things can move from rote learning to experiential mode, so that the learning can happen to the real life connection, real life situation. हमें अगर उसमें बता दिया हो गया था कि हम लीनियर इक्वेशंस क्यों पढ़ रहे हैं, हम पॉलिनोमियल्स बाइनोमियल्स क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचर को जानकारी नहीं थी, इसलिए मालूम नहीं था कि आगे वाले जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, पर हमें इसकी जानकारी देनी होगी। तो हमें ये चाहिए मैन पावर, अप्रोप्रिएट मैन पावर, जिसको हम संक्षेप में लिखा। What are the machines? Yes, we need machines as per our resources. डेस्कटॉप्स, लैपटॉप, टैबलेट्स, कई जगह टैबलेट्स दे दिया गया है, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, ये हमें चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए फॉर इंप्लीमेंटिंग वोकेशनल एजुकेशंस, ये हमें चाहिए। ये मशीन्स हमें चाहिए। यस, मनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिसोर्सेस, मनी। अभी भी आई एम नॉट से, अभी भी हमारा 3% GDP है एजुकेशन में, जो बहुत कम है। आप अगर NEP को पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि वी नीड 6% ऑफ GDP in implementing the new education policy. Double the expenditure चाहिए। Money is important. We need investment for infrastructure. स्कूल में हमें वर्कशॉप्स बनाने होंगे। 4 अगर आप ट्रेड्स लेंगे वोकेशनल एजुकेशन के लिए, हमें 4 वर्कशॉप बनाने होंगे और उसमें फिर इंस्ट्रूमेंट्स लगाने होंगे। तो इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि हमने वर्कशॉप बना दिया तो हम जो बच्चों से फीस के रूप में आपने फीस बढ़ा दिया, तो देयर शुड बी अफोर्डेबिलिटी थिंग्स ऑल्सो। टीचर अपग्रेडेशन चाहिए, उनकी होनी चाहिए। डिफरेंशियल अप्रोच होना चाहिए, सेम लर्निंग प्रोसेस नहीं, वन साइज फिट्स ऑल सिस्टम नहीं, मल्टीपल पेडागोजी हमें लाना पड़ेगा अप्रोच।
ये सब NEP का निचोड़ है। स्टूडेंट टीचर रेशियो, ह्यूज थिंग्स। 40, 45, 50 बच्चे में हम किस प्रकार जो है इंडिविजुअल अटेंशन देंगे, ये हमें थिंकिंग डालनी पड़ेगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात कहेगा, 10 days इंटर्नशिप प्रोग्राम, दोज हु विल बी अंडरगॉन द वोकेशनल एजुकेशन, बैगलेस डे होगा, पर उसके लिए भी तो मनी चाहिए। भेजेंगे आप लोकल आर्टिशियंस, लोकल क्राफ्ट्समैन, लोकल इंटेलिजेंशिया को लेंगे, तो उनमें भी देने के लिए आपको चाहिए ना, तो द मनी इज रिक्वायर्ड। एंड ऑफ कोर्स द इश्यू ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इक्वालिटी, ये है मनी। ये आपको कहने के सो दैट यू नीड टू जानकारी की ऐसे नहीं हो पाएगा थिंग्स। मटेरियल्स, यस, डिजिटलाइज क्लासरूम्स, वाईफाई रूटर्स, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स चाहिए, टीचर एड्स, टीचिंग गाइड्स, ये सब वर्क हो रहा है। किंतु आपको, एंड वी हैव टू क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट बियॉन्ड द क्लासरूम्स। हमने जो है आपको साइंस पार्क बना दिया, बच्चे जा रहे हैं वहां से गुजर रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग एट इट। साइंस पार्क में कैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, बच्चा जा रहा, आपका इनफॉर्मल लर्निंग हो रही है। हमारे समय मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की बात आई थी, और उस समय केंद्रीय विद्यालय ने जो ओपन एयर मैथमेटिक्स लेबोरेटरी बनाया था, एंड आई वाज आस्क्ड टू विजिट दैट वन एक्चुअली, इट वाज एट लखनऊ। तो है चीजें आती है, तो ये चीज हमको बनाना पड़ेगा, बट वी नीड मनी फॉर दैट, मटेरियल्स इसको तैयार करने के लिए। ये सब चैलेंजेस हमारे पास है, पर एक चीज हम कहेंगे, ये हमने चैलेंज तो बता दिया, डजंट मीन दैट इट विल हिंडर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नो, दीज ऑल चैलेंजेस आर सेकेंडरी इन नेचर, याद रखिएगा। इट कैन बी ओवरकम। द प्राइमरी, आवर फोकस शुड बी ऑन द प्राइमरी एस्पेक्ट। और ये प्राइमरी एस्पेक्ट ये क्या चीज है? दैट प्राइमरी एस्पेक्ट वी नीड टू फोकस ऑन, दैट वी नीड टू इंप्लीमेंट the provision of NCF as per with all our competence, with all our resources जो भी available है, thoughtful planning and commitment, ये 4 चीज चाहिए for implementing this one। ये तभी संभव होगा, तो here lies the importance of centrality of school heads। स्कूल हेड्स की इंपॉर्टेंस को हम नकार नहीं सकते। सेंट्रलिटी, here lies the importance of centrality of the school leadership। yes, question ये है कि how as an individual, you are individual, how you can handle and implement the things। yes, you are lonely at the top, मुझे जानकारी है, no one, you are lonely at the top, but I will ask you take someone along with you to things get implemented, you have to take that। so what are the essential ingredients, essence of educational leadership in this situation? What are the characteristics that you need to have? इसको मैंने किया इसको, of course after giving a thoughtful things also, what are the essentiality, what are the essence of school leadership at this juncture जो आज इस समय चल रहा है। 6 पॉइंट में मैंने इसको बांधा है। ओके, यस, इंटेलेक्चुअलिज्म, अभी आपके ऊपर है कि आप इंटेलेक्चुअल है कि नहीं। क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ थिंकिंग इंडिविजुअल, यस, ऑलवेज इन ए लर्निंग मोड, मैंने कहा ना, रीड ए लॉट, रन ए लॉट, लर्न ए लॉट, लव ए लॉट, अप्रिशिएट ए लॉट, जरूरत पड़े तो शाउट ए लॉट, ये है ना सब, ये लॉट की बात है। तो ऑलवेज इन लर्निंग मोड, इट मस्ट नॉट सैचुरेट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, रियल थिंग कह रहा हूँ कि मुझे इतनी चीज़ों की अभी तक जानकारी नहीं थी, और मैंने 2 टर्म जो है CBSE में चला दिए, अपने आप पर बड़ा वो होता है, तो ठीक है। तो इट नेवर सैचुरेट, लर्निंग इज इट नेवर सैचुरेट। तो जब हम रीड ए लॉट कहते हैं, एक आध मैंने कहा सब हम रीड करते हैं, तो मैंने अच्छा क्या रीड करते हैं, तो सब करीब मैं 20 मिनट 25 मिनट, किसी ने कहा 1 घंटा मैं समझ देता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि डू यू हैव एनी पर्सनल लाइब्रेरी, तब हुआ जवाब कर सब ये क्या चीज़ हो पर्सनल लाइब्रेरी। मैंने कहा आस्किंग डू यू हैव समथिंग, लास्ट बुक आपने क्या पढ़ा होगा। सर आई हैव नेवर थॉट ऑफ हैविंग ए पर्सनल लाइब्रेरी। तो मैंने कहा देन यू आर नॉट रीडिंग ए लॉट। फिर जब कहता मैंने पर्सनल लाइब्रेरी मेंटेन किया, हाउ मेनी बुक्स यू आर हैविंग, जरा काउंट किया है कभी। जैसे मेरे पास करीब इसमें 250-300 किताबें हैं। ऑलवेज मैं जहाँ से भी ग्रैब करता हूँ, ग्रैब कर लेता हूँ, पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ, ग्रैब तो कर लेता हूँ और लाइब्रेरी में उसको प्रोड्यूस कर देता हूँ। फिर कोशिश करता हूँ किस दिन बाद उसको पढ़ने की, लेट अस रीड समथिंग। ओके, यू हैव टू बी एंथुजियास्टिक एंड ग्रेसफुल अंडर प्रेशर, ये इंटेलेक्चुअलिज्म है। आर्टिस्ट्री,
Yes, the head must have the three qualities of an artist. Three qualities of an artist. First, must have a clear vision. Second, creative mind. And third, communicative. How to communicate, producing the outcome. That's artistry. Yes, must have imagination, insight, innovation, intuition, and inspiration. 5I. ये होना चाहिए आप में. 5I. That is the quality of an artist. Artistry. Humility and subsidiarity. Yes. हो सकता है कि आपसे गलती हो सकती है, मुझसे भी हुई है, सबसे होती है. Admit mistake. Yes. And don't blame. Blame मत करिए. You know the old couple story? बड़ा सीरियस हो रहा है क्लासरूम, मैं देख रहा हूँ. तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको, you know the old couple story? मैंने बताया कभी आपको, किसी ने सुना है? There was an old couple, husband जो है 70 साल के थे, and the wife was of 65. हस्बैंड ने कहा भाई लॉन्जेटिविटी तो आज 100 ईयर्स की है, आई हैव टू स्पेंड अनदर 3 years, बट ऑफ लेट माई वाइफ इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई कॉल. पहले तो थोड़ा सा इशाराबाजी करने पे ही वाइफ रिस्पॉन्ड कर देती थी, बट नाउ शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई इशारे, टू माई कॉल. व्हाट हैपेंड टू माई वाइफ? क्या वो बहरी तो नहीं होती जा रही है, बिकम डेफ एंड डम? उसने कहा हमको तो ये पता करना चाहिए था कि माई वाइफ इज बिकमिंग डेफ एंड डम. उसने लेट मी चेक बिफोर आई टेक हर टू हॉस्पिटल इमीडिएटली. एक दिन फाइन मॉर्निंग में वाइफ जो है बैठी हुई थी कुर्सी पर बैक से, हस्बैंड पीछे से आए, उसने कहा डार्लिंग आर यू हियरिंग मी? नो रिस्पॉन्स. ओहो माई वाइफ हैज बिकम 100% डेफ. ही बिकेम वेरी वेरी, मैंने कहा आई नीड टू टेक हर इमीडिएट टू हॉस्पिटल, लेट मी चेक इट वंस अगेन. थोड़ी सी नजदीक आए, सो डार्लिंग आर यू हियरिंग मी? नो रिस्पॉन्स. ओहो 200% माई वाइफ हैज बिकम डेफ. he became very very perturbed. How, what to do it? So before I take her immediately by taxi, let us come. काफी नजदीक आए. So darling, are you hearing me? Why you are shouting at me? I have already responded twice. It is the reverse way. It is the husband who is becoming the deaf, putting finger to others. Ki my wife is becoming the deaf and dumb. So before accusing to any other, before accusing to Government of India, before accusing to NCERT, before accusing to CBSE, before accusing to Mr. Ganguly, introspect yourself. Okay. So humility and subsidiarity, admit mistake, do not blame, create a receptive environment and be available, be accessible. आपको मालूम नहीं होगा, once I have left CBSE, I tried to contact just to get the feedback some of the principal. ये मैसेज मिल जाते हैं कि he is or she is busy, not available this time. काहे ऐसे कर रहे हो? Why you are creating that ego among you know? Be available, be accessible. Yes. आप कुर्सी पर बैठे हैं, इससे लोग आपसे टच में हैं. जिस दिन आप कुर्सी छोड़ देंगे ना, नो विल कम टू यू. मैं बता रहा हूँ, नो विल कम टू यू. ये आप गलतफहमी बना रही है कि आपकी ये जिंदगी चलेगी अनंत काल तक, इनफाइनिटी तक. ओके, फाइन. स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज यू आर हैंडलिंग ए कोalition गवर्नमेंट इन योर स्कूल. और कोalition गवर्नमेंट जब चलाते हैं ना, उसकी जो चैलेंजेस होती है, उसकी जो हैसल्स होती है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए. बिकॉज यू हैव टू एंगेज द कोर पीपल. मैं जानता हूं कोर पीपल को देना पड़ेगा, दैट विल हेल्प इन योर एक्टिविटी, बट यू हैव टू एंगेज द डेमन ऑल्सो. उनको भी एंगेज करना पड़ेगा. And demon is always there when you are running a coalition government. You may experiment, you may feel failures, disappointment, frustration, rejection, hostility in this journey. But then you have to manage the situation. You have to be calm and composed in the most provocative situation. ये आपके जो है एजुकेशन लीडरशिप की ये आपके जो है क्वालिटीज जो है आपकी होनी चाहिए. तो जब स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, it is a quality. देखिए, it is a building an attitude to build, to create a set of fundamental principles based on your spiritual faith that will help you to overcome the problems and the crisis. इसीलिए spirituality की हमने बात कही है. This is one of the important qualities of the educational leadership, that is spirituality. Okay. Yes, moral confidence. Moral confidence, you know that school head is both entrepreneurial as well as professional. Both. I've never said that school principal has to become a professional. So he has to be entrepreneurial also, he has to be a professional also.
जब हम प्रोफेशनल की बात करते हैं, यू नीड टू हैव सम एथिकल वैल्यूज, यू नीड टू हैव सम मोरालिटी, ये होना चाहिए. Because this character develops, this attitude develops character in the leader. Character makes trust possible, and trust makes leadership possible. ये बड़ा अच्छा उसमें है. तो leadership is only possible when you build a trust, and trust is only possible when you have a character. Okay. So again repeating that we need to have a 3 C's. ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ. The competence, connections, and the character, and the emotional intelligence. Yes, a school leader must be very graceful under pressure. You have to be calm and composed in most provocative situation, and must have a good intra and interpersonal skills. आपकी जो OTP होनी चाहिए ना, OTP मैं पूछता हूँ, what is your OTP? Because I don't have any number. मैंने नंबर ही पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं आपकी OTP पूछ रहा हूँ. You have to own that your profession, ownership. You have to believe in team work. अकेले नहीं कर सकते हैं. हम कभी नहीं करते. हमने, और जानते हो जब मेरी टेनों में जब भी सर्कुलर इशू होते थे ना, उसमें मेरे सिग्नेचर नहीं होते थे. उसमें हम अपने डायरेक्टर को कह देते थे या कंट्रोलर कहते थे, यू इशू, यू टेक द क्रेडिट. आई डोंट नीड टू हैव एनी क्रेडिट. वी हैव अचीव्ड दिस डिस्टिंक्शन, माइलस्टोन, ब्यूटीफुल. सो यू OTP से बिलीव इन टीम वर्क एंड गिव दैट क्रेडिट टू योर टीम. अपना सब ना लीजिए क्रेडिट, मत लीजिए, बिल्कुल ना लीजिए. एंड यू शुड हैव द पैशन. पैशन होनी चाहिए. अब आप अपनी बातें करते हैं, पैशन की बात करते हैं. यू विल नॉट बिलीव दैट आई डू, इवन टुडे आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर टेलीविजन. आई वाज वेरी क्रेजी अबाउट द टेलीविजन व्हेन आई वाज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल चार्जेस. जब CBSE में गए, CBSE ने हम कहा ये भी आप छोड़ दिया. बिकॉज आई ऑल्सो गेट 1440 मिनट्स इन ए डे. यू मे बी गेटिंग मोर देन दैट, बट आई एम गेटिंग ओनली 1440 मिनट्स इन ए डे. और उसमें फिर टेलीविजन का देखने का कोई मौका नहीं मिलता है. बट आई हैव स्टिल सम पैशन. पैशन होना चाहिए. अगर बीइंग ए बंगाली, अगर रात के 2 बजे ब्राजील और अर्जेंटीना की मैच होगी, मैं जग जाऊंगा. ये पैशन है. पैशन होना चाहिए. आई हैव टू मेक इट ए ग्रेट स्कूल. आई हैव टू बिकम ए ग्रेट एजुकेशनल. ये पैशन होनी चाहिए. और उस पैशन में फिर ऑब्स्टेकल सामने नहीं आता है, कोई बैरियर सामने नहीं आता है. यू हैव दैट एनर्जी. You have kinetic energy, not energy, that you can overcome those barriers. Okay, fine. So take a small step daily. If you think that आप बहुत कल ही सब चीज़ implement कर देंगे, ये thinking मैं सोच ही नहीं रहा हूँ. So take a small step daily. With each step daily, you will gain momentum. And with consistency, you will be crossing the finishing line before you actually realize it. So taking that small step daily, religiously, regularly is very important. And try to win that step. आपका जो मंत्र होना चाहिए ना, इसको याद रखिएगा. Win small, but win often. That should be your mantra. That should be the educational mantra for you. Okay. So concluding thoughts, क्या है? Take charge of your profession. Change your thoughts to change your world. कर सकते. Change your thought, change your style. Bring methods to madness. Madness में नहीं. Be proactive. May like to think big, beyond yourself and beyond your routine duties. Look into the curriculum design and revisit the pedagogical approach. Focus on non-cognitive skills. यही आपके cognitive skills आप काम नहीं ज़्यादा नहीं आएगा. पर ये नहीं करने की जरूरत नहीं है. बिना cognitive skills के आप non-cognitive में जा भी नहीं सकते हैं. But focus on non-cognitive skills also. At the foundational stage, focus on multilingualism and only on literacy and the numeracy. Okay, and try to establish if possible. कुछ स्कूल ने कर दिया है, ये मेरा पहले से भी था. Establish a class library at this stage and put the children's literature, which will be an important content for language development. Class library. Okay. At preparatory stage, art education, physical education, vocational education must be part of the curriculum. Hence, these things also be evaluated. Secondary stage must offer multidisciplinary study and greater depth, critical and creative thinking. All schools must offer now 10 subjects for 10th grade certification. ठीक है ना? And at 11th and 12th, the school must be ready to offer 6 or 7 subjects with greater flexibility. 5E अप्रोच याद रखिएगा क्लासरूम पेडागोजी में, मैंने बताने की कोशिश की थी. एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सटेंड मीन्स एक्सटेंशन,
रियल लाइफ सिचुएशन में इसका एक्सटेंड कर, नॉलेज को एक्सटेंशन देना एंड इवेल्युएट। याद रखिएगा 5E। जब भी आप अपने पीरियडिकल मीटिंग्स में, मंथली मीटिंग्स को चेंज करिए फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। केवल रूटीन अफेयर्स पर डिस्कस मत करिए और उनसे ये शेयर करिए द 5E अप्रोच ऑफ क्लासरूम पेडागोजी। फोकस ऑन द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, डिफरेंशियल होमवर्क, यस, लर्निंग विथ रियल लाइफ सिचुएशन। आप जो वोकेशनल एजुकेशन होगा उसकी 3 फॉर्म्स ऑफ जो लाइफ है उसके साथ ये जुड़ेगा, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्क के साथ जुड़ेगा। वोकेशनल एजुकेशन कंप्लीटली चेंज हो गया। फर्स्ट, वर्क विथ लाइफ फॉर्म्स, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये आपके लाइफ फॉर्म के साथ जुड़ेगा। वर्क विथ मटेरियल्स एंड मशीन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल, ये सब इसमें आएगा। वर्क विथ ह्यूमन सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्क के साथ हमारा वोकेशनल एजुकेशन जो है वो आप जुड़ेगा। ओके, करिकुलम प्लानिंग करिए। ट्राई टू डू दैट 32 वीक्स ऑफ WTP, वीकली टीचिंग प्लान, 32 वीक्स। अगर 6 डेज है तो 192 डेज, 5 डेज वीक है तो 160 डेज। एंड द करिकुलम प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। How the curriculum, not entire things, entire curriculum, entire content be not taught in the offline situation, in the classroom mode. ये ना करिए, पुरानी स्थिति पर ढल रहा है। अब the curriculum has to be, curriculum planning is the art and science both. Let the curriculum be divided into 3 stages. First, identify those subjects, those chapters, those portion of curriculum which will be taught only in the offline modes, जो आप classroom situation में करा सकते हैं. But then identify those portion of the curriculum which can be completed through online mode. Hybrid learning की बात हम कर रहे हैं. And the portion of the curriculum which can be completed through project based learning, जो summer vacation में हो सकता है. तो curriculum planning is both art and science, and try to execute this curriculum planning as accordingly. Okay. Look into your people, your teachers. People should be prioritized over paperwork. Give attention to teacher development program. In the school situation, create both teacher support system and the student support system. ये सब एक पर लेक्चर हो सकता है, पर इतना समय नहीं है. बैक टू स्कूल प्रोग्राम फॉर टीचर्स, भेजिए उनको बैक टू स्कूल में, 3 मंथ में भेजिए, स्कूल में ही क्रिएट करिए बैक टू स्कूल प्रोग्राम फॉर योर टीचर्स. एंड एटलीस्ट 1.2, 1.5 or 2% of school budget earmarked for CPD, continuous professional development. So, before ending, school leadership is one of the things that you cannot delegate. You either exercise it or you abdicate it. देखिए, एक जर्नी है, ये एक जर्नी है, इस जर्नी को कंप्लीट करना है. इसमें पेन होगा, इसमें धूप होगी, परेशानी होगी. सफर में धूप तो होगी, कट से निदा कामिल या निदा फाजिल, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो. भाई सभी है भीड़ में, सब लोग लाइन में खड़े हैं, तुम भी निकल सको तो चलो. किसी के वास्ते रास्ते कहाँ बदलती है, आपके लिए रास्ता थोड़ी बदलेगा. किसी के वास्ते रास्ते कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो. सभी सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हिफाजतों की रिवायत, उर्दू वर्ड्स है, कंफर्ट जोन्स की रिवायत, हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चलो. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो.